Good morning, everyone. We will discuss in the today's lecture that is solid dosage form, that is powder. In the previous lecture, we will learn the introduction, the definition of powder, then some of the advantage of powder. Then next is disadvantage of powder, then classification of powder. In that classification there are 5 types of classification of powder. That is, first is powder for internal use, second is powder for external use. In that powder for external use, that is subdivided 5 points which is included in powder for external use, that is insufflation, snuff, dentifrices, etc. Then next is simple powder and compound powder, the compound powder. Then the next is remaining 2 classification which is related to powder, we will discuss in today's lecture. So let's see what is the introduction. Just I have in 2 to 3 minutes I have revised the previous lecture, that is introduction. Powder are mixture of finely divided drugs or chemicals in dry form. They are used internally as well as externally. They are available in crystalline and amorphous form. There is a relationship between particle size of powder and dissolution, absorption and therapeutic effect of drug. The next is some of the advantage which is included in powder, that is powder are more stable than liquid dosage form. The chances of incompatibility are less as compared to liquid dosage form. The onset of action powder drug is rapid as compared to the other solid dosage form. जैसा कि हमने देखा था ऑनसेट ऑफ एक्शन पाउडर की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल्स. The next is large quantity of powder drugs can be administered to patients. large quantity में हम ड्रग ले सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर dosage form. Then small children or elderly patients can easily take the powder drug such as dispensed in a water or any other liquid, obviously. The next is powder are more economical as compared with other dosage form because not required in special machinery or techniques. Powder are more easy to carry than other liquid dosage form. Then some of the disadvantage also given here. Drugs having bitter, nauseous and unpleasant taste cannot be dispensed in powder form. The deliquescent or hygroscopic drugs cannot be dispensed in a powder form. Drugs which get affected by atmospheric condition are not suitable for dispensing in powder form. The dispensing of powder is a time consuming process. Some of these are disadvantage of powders. Then next is the classification of powders. We will learn the bulk powder for internal use, bulk powder for external use, and also simple and compound powder for internal use. So the remaining 2 classification, that is powder enclosed in cackets and capsule and compressed powder, we will learn in today's lecture. So let's see what is the powder enclosed in cackets and capsule. The first is bulk powder for internal use, then second is bulk powder for external use. Then bulk powder for external use is the in this sub point is included, that is dusting powder. Then their example, procedure, direction and use. Then insufflation, what is insufflation, that is included in external use. Then snuffs, then dentifrices. Then simple and compound powder for internal use. Then simple powder, this is there is formula, procedure and direction. Then compound powder, their formula, procedure. Then we will discuss in the today's lecture what is powder enclosed in cackets and capsule. What is cackets? Cackets means was and capsules already we will learn in pharmaceutics. First, what is capsules? In this second year we will learn or discuss what is cackets and capsules. So let's see what is cackets. Cackets are solid dosage form of drug and cackets are also called as wafer capsules. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कैकेट जो होता है एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है ड्रग का, उसे क्या बोलेंगे, एक कैकेट्स भी बोलेंगे और ऑल्सो कॉल्ड एज वेफर कैप्सूल्स. एक कैप्सूल की तरह का ही ये होता है. दिस आर मोल्डेड फ्रॉम राइस फ्लोर और राइस पेपर. इसका जो जैसे कि हम कैप्सूल बनाते हैं
जैसे कि हम कैप्सूल प्रिपेयर करते हैं जिलेटिन से, उसी तरह से ये जो कैकेट्स होता है, कैकेट्स को हम कैकेट्स को बनाते हैं राइस फ्लोर से। जो चावल का आटा होता है उसको गरम करके मोल्ड के अंदर डालते हैं, जैसे हम लिपस्टिक जैसा डालते थे मोल्ड के अंदर लिपस्टिक का जो मैटर होता था तो उसको अंदर डालते थे, और मोल्ड करने के बाद उसके शेप में वो लिपस्टिक प्रिपेयर होकर आती थी। तो उसी तरह से राइस का जो फ्लोर होता है, जो चावल का आटा होता है, उसको हम एक मोल्ड में डालेंगे और उसका जो शेप होता है उस शेप का उसको प्रिपेयर करेंगे। उसे क्या बोलेंगे, दिस आर मोल्डेड फ्रॉम राइस फ्लोर। जो कैकेट्स होते हैं राइस फ्लोर से बनती है। देन राइस पेपर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर विथ वाटर इनक्लोज इन बिटवीन टू हॉट पॉलिश्ड सिलेंडर। अब यहाँ पर बताया गया कि जो राइस पेपर होता है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं मोल्ड के अंदर डालकर प्रिपेयर करते हो, तो उसका मिक्सचर जो होता है राइस फ्लोर से होता है। राइस का जो फ्लोर होता है, जो आटा होता है चावल का, उससे राइस पेपर बनाते हैं और उसके अंदर रैप करते हैं ये पाउडर ड्रग। उसे क्या बोलेंगे, कैकेट्स से बोलेंगे। राइस पेपर प्रिपेयर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर विथ वाटर के साथ प्रिपेयर करेंगे राइस का जो पेपर है राइस फ्लोर के अंदर। देन उसको इनक्लोज करेंगे बिटवीन टू हॉट पॉलिश्ड सिलेंडर। इन्होंने यहाँ पर बताया कि एक दो हॉट सिलेंडर होते हैं, पॉलिश किए हुए हॉट सिलेंडर होते हैं। उसके अंदर ही जो राइस का फ्लोर होता है, जो राइस का वाटर होता है, जो राइस का जो फ्लोर होता है उसको वाटर के साथ थोड़ा सा उसका मिक्सचर बनाएंगे, और जो हॉट 2 सिलेंडर होते हैं उसके अंदर इसको डालेंगे और एक उसका मोल्ड प्रिपेयर करेंगे और एक राइस पेपर प्रिपेयर करेंगे, राइस फ्लोर का पेपर प्रिपेयर करेंगे, जिसके अंदर हमको ये पाउडर ड्रग्स इनक्लोज करना है। तो उसे क्या बोलेंगे, कैकेट्स से बोलेंगे। ओके, देन वाटर वॉज इवोपरेट एंड वेफर इज फॉर्म। जो भी हमने राइस फ्लोर के अंदर वाटर डालकर एक मिक्सचर जो प्रिपेयर करा था, तो उसका जो वाटर है हमको इवोपरेट करना है, और उसको एक जो वाटर होता है उसके अंदर हमने कैकेट्स प्रिपेयर करने के बाद उसका जो मॉइस्चर होता है वो हमको इवोपरेट करना है, उसको रिमूव करना है, और उसके बाद जो प्रिपेयर हो जाएंगे कैकेट्स उसको क्या बोलेंगे, वेफर बोलेंगे। वेफर फॉर्म हो जाएगी। इन द कैकेट्स 0.2 to 1.5 ग्राम नॉजियस और डिसएग्रीबल ड्रग इन पाउडर फॉर्म आर इनक्लोज। वो जो कैकेट्स हमने प्रिपेयर की थी उसके अंदर 0.2 और 1.5 ग्राम के 1.5 ग्राम का जो नॉजियस और डिसएग्रीबल टेस्ट का जो ड्रग होता है वो हमको उसके अंदर इनक्लोज करना है, और वो हमको उस कैकेट्स के अंदर फिल करना है। समझ में आता है कैकेट्स क्या होता है? कैकेट्स एक सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अल्सो कॉल्ड एज वेफर कैप्सूल ऐसे बोलेंगे। और मोल्डेड फ्रॉम उसको प्रिपेयर करना है हमको राइस फ्लोर से, जो चावल का आटा है उसे प्रिपेयर करना है। जैसे कि हम जिलेटिन जो जिलेटिन होता है, हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जैसे कैप्सूल प्रिपेयर होता है जिलेटिन से, उसी तरह से ये कैकेट्स होता है वो प्रिपेयर किया जाता है राइस का जो आटा होता है उससे हमको ये कैकेट्स प्रिपेयर करना है। तो राइस का जो पेपर रहता है उसको हम प्रिपेयर करेंगे राइस का फ्लोर से। उसके अंदर हम वाटर का एक मिक्सचर बनाएंगे, राइस फ्लोर का विथ वाटर, उसका एक मिक्सचर बनाएंगे, और वो उस मिक्सचर को हमको हॉट जो ऐसे सिलेंडर टाइप और पॉलिश्ड टाइप 2 सिलेंडर होते हैं हॉट जो कि गर्म होते हैं, उसके ऊपर वो डालना है उस मशीन के अंदर, और उसका पेपर प्रिपेयर करना है, कैकेट्स का एक पेपर प्रिपेयर करना है। उसको क्या बोलेंगे, कैकेट्स बोलेंगे। राइस का एक पेपर प्रिपेयर करना है, उसको हम कैकेट्स बोलेंगे। सिंपल क्या बोलना है हमको, कैकेट्स मतलब क्या है, राइस का पेपर होता है उसके अंदर हमको ड्रग फिल करना होता है। क्यों ड्रग फिल करना होता है? कैकेट्स के अंदर राइस का एक थर किंवा एक राइस का जे एनव्हलप किंवा फ्लॅट लेअर आपल्याला माहिती म्हणायचं आहे की कशाला यूज करायचं आहे, जे की एक नॉजियस म्हणजे ज्या ड्रग्सची पेशंटला वॉमिटिंग होईल किंवा जे डिसएग्रीबल टेस्ट आहे ज्या ड्रगची, अशा ड्रगला आपल्याला हाईड करायचं आहे. कशामध्ये? हे राईसच्या पेपरमध्ये हाईड करून ते ड्रग आपल्याला पेशंटला द्यायचं आहे. त्याला काय म्हणणार आहेत आपण? कॅकेट सिम्पली असं म्हणणार आहेत. ओके, त्याला वेफर कॅप्सूलसुद्धा आपण असं म्हणू शकतात. आणि त्याच्यामध्ये
आपल्याला त्या कॅकेट्समध्ये आपल्याला 0.2 to 1.5 ग्रॅमचे जे नॉझियस आणि डिसॲग्रेबल जे ड्रग्स असतात ते आपल्याला त्याच्यात इन्क्लूड करायचे आहे. त्यालाच आपण कॅकेट्स असं म्हणणार आहेत. कॅकेट्स आर क्वाईट हार्ड, सो बिफोर स्वेलिंग दे डिप्ड इन वॉटर फॉर सेकंड एंड देन प्लेस्ड ऑन टंग एंड स्वेल्ड विथ ड्राफ्ट ऑफ वाटर. अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो कैकेट्स हुआ करते हैं, जो कैकेट्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं. सो बिफोर स्वेलिंग जब भी हमको इंटेक करना है, उसको खाना है, उससे पहले हमको क्या करना है, उस कैकेट्स को डीप करना है वाटर के अंदर कुछ सेकंड के लिए एंड देन प्लेस उसको कुछ सेकंड के लिए वाटर के अंदर डीप करना है. उसके बाद टंग के ऊपर रखकर उसको स्वेल कर लेना है हमको वाटर के साथ, उसको इंटेक कर लेना है. तो उसका एक प्रोसीजर है. जैसे कि कैप्सूल और टैबलेट हम लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको वेट करने की और डीप वाटर के अंदर डीप करने की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन ये जो कैकेट्स रहते हैं थोड़ा सा हार्ड होते हैं, इसलिए उसको क्या करना है, थोड़ा सा डिप करना है वाटर के अंदर और उसके बाद वाटर के साथ उसको टंग के ऊपर रख के उसको स्वेल कर लेना है और उसका इंटेक कर लेना है. ओके, आफ्टर स्वेलिंग द कैकेट्स गेट्स डिसइंटीग्रेट एंड ड्रग इज रिलीज. आफ्टर जब भी हम इसका स्वेलिंग करेंगे तो कैकेट्स डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, एब्सॉर्प्शन उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और ड्रग रिलीज हो जाएगा ब्लड के अंदर. तो ये होता कैकेट्स. तो इसके कुछ एडवांटेज यहाँ पर दिए गए हैं, वो देख लेते हैं. तो मेड इजीली, कैकेट्स इजीली मेड किया जाता है. डिसइंटीग्रेट क्विकली इन स्टमक, जैसा कि हम उसको थोड़ा सा डिप करते हैं वाटर के अंदर और उसके बाद उसको इंटेक कर लेंगे तो इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा स्टमक के अंदर. ड्रग कैन भी इजीली डिस्पेंस्ड, इजीली हम ड्रग को डिस्पेंस कर सकते हैं थ्रू कैकेट्स. देन लार्ज डोज ऑफ ड्रग कैन बी स्वेल्ड बाय यूजिंग कैकेट्स, जो भी लार्ज डोज होता है कैकेट्स के अंदर जो ड्रग का इजीली कैकेट्स के अंदर हम दे सकते हैं और सॉलो कर सकते हैं, खा सकते हैं लार्ज क्वांटिटी ड्रग का और डोज का. जो भी कैकेट्स में हम यूज़ करते हैं ड्रग का उसका. तो ये कुछ एडवांटेज थे. अब कुछ डिसएडवांटेज भी यहाँ पर दिए गए हैं कैकेट्स के. तो क्या होते हैं वो डिसएडवांटेज, वो देख लेते हैं हम. रिक्वायर्ड सॉफ्टेन बिफोर यूज़ और स्वेलिंग, ये कैकेट्स का एक डिसएडवांटेज है मोस्टली, जो कि जैसे भी हम स्वेल करने के पहले हमको क्या करना पड़ता है, खाने के पहले उसको मस्ट है कि उसको वाटर के अंदर डिप करना है. उसको वेट करेंगे, उसको थोड़ा सा भिगाएंगे तभी हमको उसका इंटेक करना है. ये एक डिसएडवांटेज है. जैसे कि हम सबको पता है कि टैबलेट लेते हैं तो उसको वाटर में डिप करते हैं क्या, नहीं करते. कैप्सूल लेते हैं उसको वाटर के अंदर डिप करते हैं क्या, नहीं करते. तो कैकेट्स का एक डिसएडवांटेज है क्या, कि उसको मॉइस्ट करना है और उसको डिप करना है वाटर के अंदर थोड़ा कुछ सेकंड के वास्ते और उसके बाद उसको स्वेलिंग करना है. ये इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है. इजीली डैमेज और इजीली उसको ब्रेक, और वो जो कैकेट्स होते हैं इजीली ब्रेक भी होते हैं, तो एक उसका डिसएडवांटेज है. देन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि कैन नॉट बी प्रोटेक्ट द इनक्लोज्ड ड्रग फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर. जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो इसके अंदर ड्रग हमने कैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया था उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे लाइट और मॉइस्चर से. मतलब इन्वायरमेंट का उसके ऊपर वही इफेक्ट हो जाएगा, जैसे कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा लाइट की वजह से और सनलाइट की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से वो ड्रग और वो कैकेट्स के अंदर जो ड्रग है वो ख़राब हो जाएगा. ये एक इसका डिसएडवांटेज है. शेल ऑफ कैकेट्स आर फ्रेजाइल, सो ड्रग कंटेंट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. जो शेल होती है जो कि राइस के फ्लोर से हमने बनाई थी और राइस पेपर से जो शीट हमने बनाई थी पेपर ड्रग की नहीं, जो शीट हमने बनाई थी राइस फ्लोर से और उसके अंदर हम इनक्लोज करने वाले थे पाउडर ड्रग. जो शील होती कॅकेट्स की वो थोडीशी काय होती फ्रॅजाईल होती, म्हणजे ठिसूळ असतात ते आणि त्यामुळे जे ड्रग कंटेंट आहे कॅन नॉट बी कंप्रेस्ड. जसं आपण टॅबलेट्सचं पाहिलं बघा, आपण टॅबलेट कसं प्रिपेअर करतो आपण की टॅबलेटचे पावडर फॉर्म जे ड्रग असतो त्याला आपल्याला आपण त्या मशीनमध्ये कंप्रेस करतो, तसं हे कॅकेट्सला कंप्रेस करता येत नाही, कारण की जे शेल असते कॅकेट्सची ते फ्रॅजाईल असते, ठिसूळ असते, त्यामुळे त्याला कंप्रेस करता येत नाही इथं.
हे एक त्याचा डिसॲडव्हान्टेज आहे. दे आर नॉट सुटेबल फॉर फिलिंग द ड्रग इन लार्ज स्केल. त्याच्यामध्ये आपण जे डोस जास्त घेऊ शकतो, जसं की म्हणजे कॅकेट्स जास्त प्रमाणात आपण यूज करू शकतो डोस ॲज अ डोस. पण जे ड्रग आहे दे आर नॉट सुटेबल फॉर फिलिंग द ड्रग्स इन लार्ज स्केल. जास्त क्वांटिटीमध्ये आपल्याला ड्रग त्याच्यामध्ये फिल करता येणार नाही. डोस आपण किती पण घेऊ शकतो. समजतं की डोस आणि ड्रगचा डिफरन्स. डोस आपल्याला, डोस म्हणजे काय, एखादी टॅबलेट आपल्याला दिवसातून 3 वेळेस घ्यायची, हे डोस असतो. हे समजते का, किती क्वांटिटीमध्ये किती मिलीग्राममध्ये आपल्याला डोस घ्यायचं आहे, हे डोस आहे. आणि ड्रग जे क्वांटिटीमध्ये जे ड्रग आहे ते आपण लार्ज क्वांटिटीमध्ये ह्या कॅकेट्समध्ये फिल करू शकत नाहीत. हे सांगितलेलं एक डिसॲडव्हान्टेज आहे त्याचं. दे ऑकर्स मोर स्पेस कम्पेअर विथ अ टॅबलेट अँड कॅप्सूल सॉलिड डोसेज फॉर्म. म्हणजे दे ऑकर्स मोर स्पेस ह्याला ॲज कम्पेअर टू टॅबलेट अँड कॅप्सूल सॉलिड डोसेज फॉर्म. ह्याला स्पेस जास्त लागतं आहे ॲज कम्पेअर टू टॅबलेट आणि कॅप्सूल. कॅकेटला एक जास्त स्पेस लागतो आहे किंवा जे पावडर असतं ते फिल करण्यासाठी कॅकेट्समध्ये ॲज कम्पेअर टू टॅबलेट आणि कॅप्सूल सॉलिड डोसेज फॉर्म जास्त स्पेस रिक्वायर आहे इथं. देन हे झाले एक डिसॲडव्हान्टेज कॅकेटचे. देन आता आपण पाहूयात, समजतं आपल्याला कॅकेट्स काय आहे ते. कॅकेट्स एक सिम्पल म्हणायचं की एक राईस फ्लोअरपासून एक शीट किंवा राईस पेपर प्रिपेअर केलं जातं. जसं की आपण कॅप्सूलचं शेल प्रिपेअर करतो, जिलॅटिन शेल, तशाच प्रकारे राईस फ्लोअरचा एक राईस पेपर बनवायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ड्रग इन्क्लोज करायचं त्याच्यामध्ये. ह्यालाच आपण कॅकेट्स असं म्हणूयात. तर त्याचे काही ॲडव्हान्टेज पण आहेत आणि डिसॲडव्हान्टेज पण आहेत. देन नेक्स्ट आपण कॅकेट्स जे आहेत त्याचा टाइप बघूयात. तर त्याचे 2 टाइप आहेत. 2 टाइप हैं इसके, जैसे कि एक वेट सील कैकेट्स है और दूसरा है ड्राई सील कैकेट्स. तो हम देख लेते हैं वेट सील कैकेट्स क्या होता है. तो वेट सील कैकेट्स is made up of 2 similar convex havels having flat edges. So next is the weight of powder drug is placed in one half. The edge of other half are moistened with water and placed exactly over the first half containing the drug. The flat edge of both the havels are pressed together in order to seal it perfectly. अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो वेट सील कैकेट्स होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है. वेट के अंदर देख लेते हैं हम. वेट सील कैकेट इज मेड अप ऑफ 2 सिमिलर कॉन्वेक्स हैवल्स हैविंग फ्लॅट एज. कॉन्वेक्स हैवल्स मतलब क्या, 2 असे कॉन्वेक्स टाईपचे भाग. हॅवल्स म्हणजे भाग म्हणता येईल आपल्याला इथं. 2 कॉन्वेक्स भागचे फ्लॅट एजचे हे वेट सील कॅकेट्स आहेत. म्हणजे वेट सील जे कॅकेट आहेत त्याचे 2 असे सिमिलर भाग आहेत, फ्लॅट टाईपचे भाग आहेत. तर त्याच्यामध्ये नेक्स्ट सांगता येईल की द वेट ऑफ पाउडर ड्रग इज प्लेस्ड. 2 ह्या वेट जे कैकेट्स हैं त्याचे 2 उसके सिमिलर भाग हैं. जैसे कि 2 भाग हैं उसके, एक हाफ पोर्शन, दूसरा ऊपर का एक पोर्शन, नीचे का एक पोर्शन, ऐसे 2 भाग हैं उसके अंदर, फ्लैट भाग हैं. तो एक जो उसका भाग है तो उसके अंदर वे करके पाउडर हमको पाउडर वे करना है, हमको ड्रग पाउडर वे करना है और उसको प्लेस करना है, एक भाग के अंदर प्लेस करना है. एंड द एज ऑफ अदर, जो एजेस है, जो भाग है एजेस है, जो लास्ट जो क्या बोलेंगे समझो कोने जो भाग है ना, हैवल्स मतलब जो भाग है कैकेट्स का, उसका जो कोना है उसको क्या करेंगे, द एज ऑफ और द हाफ आर मॉइस्चर्ड विथ वाटर. जो उसका दूसरा भाग है थोड़ा सा उसको मॉइस्ट करेंगे वाटर के साथ एंड प्लेस्ड एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट हाफ कंटेनिंग द ड्रग. जो भी समझो, यहाँ पर मैं सिंपली बताती हूँ कि जो कैकेट्स हैं, वेट कैकेट्स, उसके 2 भाग हैं. एक भाग के अंदर हमको ड्रग रखना है और एक भाग के अंदर क्या, दूसरा जो भाग है हमको वाटर से थोड़ा सा उसको मॉइस्ट करना है. और क्या करेंगे उसके बाद, जो पहले वाला जो भाग था विच कंटेन्स ड्रग,
उसके ऊपर क्या करेंगे, जो मॉइस्ट की वाला अदर जो भाग था वो उसके ऊपर हम रख देंगे। एंड देन द फ्लैट एज ऑफ बोथ द हैवल्स आर प्रेस्ड, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे टुगेदर इन द ऑर्डर टू सील करने के लिए। प्रेस करना मतलब उसको सील कर देंगे परफेक्टली। समझ में आता है कैकेट्स क्या होता है कि जो दो भाग रहते हैं, हैवल्स रहते हैं, फ्लैट एज होते हैं, जो कि राइस फ्लोर से बनाते हैं। और उसके ऊपर क्या करेंगे, उसकी एक मेथड है कैकेट्स की। दो भाग रहते हैं, एक भाग के अंदर ड्रग रखेंगे फिल कर राइस का जो शीट होता है उसका दो भाग होते हैं, वेट मतलब दो भाग होते हैं राइस फ्लोर पेपर के। एक पेपर के ऊपर मतलब एक हॅवेल्स के ऊपर एका भागात वेट सीलचे कॅकेट्स आहेत, एका भागामध्ये आपल्याला ड्रग ठेवायचे आणि दूसरा जे भाग है उसको क्या करेंगे, वाटर से मॉइस्ट करेंगे और जो ड्रग वाला भाग था उसके ऊपर मॉइस्ट किया वाला भाग उसके ऊपर रखेंगे और उसको सील कर देंगे। इसे क्या बोलेंगे, वेट सील कैकेट्स बोलेंगे। देन यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर बताई गई है और एक यहाँ पर मशीन है। इस मशीन के ऊपर आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं। इस मशीन के ऊपर यहाँ पर बताया है, इस मशीन के अंदर राइस का जो फ्लोर है वो रखेंगे और ड्रग क्वांटिटी रखकर उसको प्रेस कर देंगे। ये वेट सील का तो समझ में आता है कि यहाँ पर एक इमेज दी गई है। इस इमेज के अंदर बताया है कि वेट सील, आपको एग्जाम में वेट सील, ड्राई सील विदाउट डोम और ड्राई सील विथ डोम यहाँ पर डायग्राम बताई गई है। और इस डायग्राम के हिसाब से आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है, डायग्राम निकालनी है। वेट सील की यहाँ पर डायग्राम है, तो जैसे कि मैंने बताया था दो हैवल्स हैं इसके। एक हैवल्स के अंदर नीचे का जो हैवल्स है, एक हैवल्स के अंदर आपको क्या करना है, ड्रग रखना है और एक हैवल्स को जो ऊपर का हैवल्स है, ऊपर का जो भाग है उसको वेट करना है और ड्रग जो कंटेंट ड्रग का जो हैवल्स है उसके ऊपर रखना है और उसको थोड़ा सा प्रेस करना है और सील करना है। तो एक मशीन है, इस मशीन का यूज़ करते हुए भी हम वेट कैकेट्स भी बना सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ड्राई सील कैकेट्स देख लेते हैं हम। ड्राई सील कैकेट्स क्या होती है वो देख लेते हैं। ड्राई सील कैकेट्स कंसिस्ट ऑफ टू हैवल्स आल्सो, द अपर हाफ एंड लोअर हाफ। द डायमीटर ऑफ अपर हाफ इज स्लाइटली लार्जर देन लोअर हाफ. The powder drug is filled in lower half and upper half is fitted over it. The filled cackets are then sealed in machine by pressing the two havels, removed and packed in boxes. BPC includes two cackets, sodium amino salicylate and sodium amino salicylate with isoniazide. तो जैसा कि हमने देख लिया था, जैसा कि हमने देखा है ड्राई सील कैकेट्स का जो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ऊपर का इन्होंने बताया है कि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताया है कि द डायमीटर ऑफ अपर हाफ इज स्लाइटली लार्जर देन लोअर हाफ। तो देख लेते हैं कि अपर जो हाफ है ड्राई सील का तो थोड़ा सा बड़ा है नीचे वाले से। तो जो अपर हाफ है ड्राई सील कैकेट्स का वो थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू द नीचे वाला जो है नेक्स्ट जो लोअर हाफ है वो थोड़ा सा स्लाइटली लोअर है एज कम्पेयर टू अपर हाफ। द पाउडर ड्रग इज फिल्ड इन लोअर हाफ, जो पाउडर फिल करना है हमको लोअर हाफ में फिल करना है एंड अपर हाफ इज फिटेड ओवर इट, और जो अपर हाफ है उसके ऊपर उसको फिट करना है। द फिल्ड कैकेट्स आर देन जो फिल किया हुआ कैकेट्स है उसको सील करना है बाय मशीन बाय प्रेसिंग, जैसे कि हमने यहाँ मशीन देखी थी। इस मशीन के द्वारा इसको सील करेंगे हम बाय प्रेसिंग टू हैवल्स। वो हैवल्स को जो ड्रग कंटेंट है उसको मशीन के अंदर डालेंगे और मशीन से प्रेस करेंगे, दोनों हैवल्स को रिमूव करेंगे मशीन से और पैक करेंगे उसको बॉक्स के अंदर। यहाँ पर एक बीपीसी इंक्लूड्स दो कैकेट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं बीपीसी के द्वारा, जैसे कि सोडियम एमिनोसैलेट्स एंड सोडियम एमिनोसैलेट विथ आइसोनियाजाइड। यहाँ पर दो ड्रग कंटेनिंग कैकेट्स यूज़ किए गए हैं। तो समझ लिया आपको, समझ गए ड्राई और वेट कैप्सूल क्या है। थोड़ा ही ड्राई और वेट एज कम्पेयर टू द नेम ड्राई एंड वेट के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, जो हैवल्स होते हैं एक हैवल्स थोड़ा सा वेट करके प्रेस करना है। ड्राई के अंदर वेट नहीं करना, सिंपल ड्रग फिल करना है और ऊपर का जो हैवल्स है अपर हैवल्स उसको ऊपर रखते हुए उसको मशीन के द्वारा उसको प्रेस करना है। और वेट के अंदर क्या करना है आपको, जो दो हैवल्स हैं जो दो भाग हैं, एक भाग के अंदर ड्रग रखेंगे पाउडर ड्रग, दूसरे भाग का जो दूसरा ऊपर वाला जो भाग है उसको थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके ऊपर रखेंगे पहले वाले भाग के अंदर और उसको सील कर देंगे
देंगे, प्रेस कर देंगे। यही डिफरेंस है, थोड़ा सा वेट के अंदर जो एक कंटेंट है, जो एक भाग है, थोड़ा सा उसको वेट करेंगे। ड्राई के अंदर कुछ भी इसके अंदर वेट करने की वो कुछ ज़रूरत नहीं, सिंपल ड्रग फिल करेंगे और ऊपर का भाग ऊपर से प्रेस कर देंगे। ओके, these are powders enclosed in cackets and capsules. Okay, two types of cackets are included in this slide, that is wet slide cackets, and there is diagram also, and there is machine for pressing these cackets, and then next is dry seal cackets. Okay, cackets क्या है समझ में आ गया आपको? तो देखेंगे हम लास्ट जो क्लासिफिकेशन है पाउडर का, वो लास्ट देखेंगे, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कंप्रेस्ड पाउडर, tablets, और वी कैन से दैट टैबलेट ट्रैचुरेट और ऑल्सो कॉल्ड एज मोल्डेड टैबलेट्स। तो ये क्लासिफिकेशन है पाउडर का है, इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं हम। इन दैट पाउडर्स मोल्डेड इनटू टैबलेट्स, ये पाउडर जो होते हैं, पाउडर ड्रग जो होते हैं, उसको मोल्ड करके टैबलेट के अंदर उसको कन्वर्जन करते हैं टैबलेट ट्रैचुरेट के अंदर, उसका नाम है, और मोल्ड टैबलेट इसे बोलेंगे, और कंप्रेस्ड पाउडर बोलेंगे। ऑब्वियसली हमने देखा था टैबलेट क्या होते हैं, टैबलेट कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक पाउडर फॉर्म होता है, ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं हम, उसके पाउडर के ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं, उसको कंप्रेस करके मशीन में डालते हैं और उसका टैबलेट प्रिपेयर करते हैं। तो उसी तरह से एक क्लासिफिकेशन पाउडर का, जो कि पाउडर को यूज़ करते हुए उसको कंप्रेस कर उसका टैबलेट के अंदर कन्वर्जन करेंगे, उसे ये एक क्लासिफिकेशन है पाउडर का, देख लेते हैं वो। इन दैट पाउडर मोल्डेड इनटू टैबलेट्स, जो पाउडर होता है उसको मोल्ड कर टैबलेट को उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। देन दे आर जो ये टैबलेट्स प्रिपेयर करते हैं पाउडर का, तो एक फ्लैट टैबलेट प्रिपेयर करते हैं, और सर्कुलर भी होती है कहीं पर, कुछ जगह, कुछ ठिकानी, और कुछ जगह क्या होता है, यूजुअली कंटेन्स पोटेंट ड्रग ऑल्सो इन दिस पाउडर और टॅबलेट्स, पोटेंट ड्रग ऑल्सो इन्क्लुडेड इन दिस, दे आर फ्लॅट असतात, ते फ्लॅट असतात टॅबलेट आणि सर्क्युलर पण असतात, दे आर फ्लैट सर्कुलर डिस्क और यूजुअली कंटेन्स पोटेंट ड्रग। पोटेंट ड्रग क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था आपको पोटेंट ड्रग क्या होता है। जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग यूज़ करते हैं हम एज ए ड्रग बोल के, तो उसे पोटेंट ड्रग बोलेंगे, और जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते उसको अनपोटेंट बोलेंगे। पोटेंट मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग होते हैं। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, इन दैट पोटेंट ड्रग्स ड्रग आर मिक्सड विथ लैक्टोज। जो पोटेंट ड्रग होता है पाउडर फॉर्म में जो यूज़ करते हैं पोटेंट ड्रग, उसके अंदर दे आर मिक्सड विथ लैक्टोज, डेक्सट्रोज और सम अदर डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स भी क्या होता है वो हमने देख लिए थे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के अंदर ऑल्सो। डाइल्यूएंट और बाइंडिंग एजेंट, डाइल्यूएंट क्यों यूज़ करते हैं कि वो जो क्वांटिटी होती है ड्रग की उसको फिलअप करने के वास्ते, जैसे कि पोटेंट ड्रग रहते हैं, मान लीजिए कि एक विनका का पोटेंट ड्रग हमने प्रिपेयर किया है और एक्सट्रॅक्ट करके विनका का ड्रग हमने निकाला है, तो पोटेंट ड्रग बहुत कमी प्रमाणात त्याची क्वांटिटी कमी प्रमाणात असते, पण तर काय करायचं आहे, त्या पोटेंट ड्रगची क्वांटिटी आपल्याला फिलअप करायची आहे, त्याच्यात म्हणजे क्वांटिटी मेकअप करायचं आपल्याला, तर त्याच्यासाठी त्याच्यात आपल्याला डायल्यूएंट म्हणून ॲड करायचे एक, जसं की लॅक्टोज आहे, डेक्स्ट्रोज आहे, हे किंवा अदर जे डायल्यूएंट आहेत ते यूज करून आपल्याला त्या पोटेंट ड्रगची क्वांटिटी फुलअप करणार म्हणजे मेकअप करणार आहेत टॅबलेट ट्रायच्युरेटमध्ये और कंप्रेसर पावडरमध्ये और मोल्डेड टॅबलेट्समध्ये। द नेक्स्ट बघूयात आपण, द यूज्ड ॲपरेटस इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक। जे की आपण ॲपरेटस यूज़ करणार आहेत त्या स्टेनलेस स्टील से और प्लास्टिक से वो बना हुआ होता है ॲपरेटस, जो कि हम कंप्रेस करने वाले टैबलेट और टैबलेट ट्रायच्युरेट करने वाले हैं और मोल्डेड टैबलेट्स करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर परफोरेटेड प्लेट्स और हैविंग द सेम it consists of upper, the apparatus used apparatus is made up of stainless steel or plastic. Then it consists of upper and lower perforated plates and having the same number of holes। मतलब इसके अंदर क्या करते हैं कि दो अपर और लोअर परफोरेटेड प्लेट्स यूज़ किया जाता है। इस मेथड को यूज़ करते हुए कंप्रेसर पाउडर बनाते हैं, दो परफोरेटेड प्लेट्स यूज़ किया जाता है। देन द लोअर प्लेट आल्सो हैव टू लार्ज पेक्स विच इंश्योर करेक्ट फिटिंग ऑफ प्लेट्स। मतलब जो लोअर प्लेट होती है
जिससे कि हम ये कंप्रेस्ड पाउडर प्रिपेयर करने वाले होते हैं। जो लोअर प्लेट्स होती हैं उसके अंदर लार्ज टाइप के जो पेग्स होते हैं, मतलब पेग्स मतलब क्या बोलेंगे, छोटे छोटे ऐसे छिद्र क्यों होल स्टील विच इंश्योर करेक्ट फिटिंग ऑफ प्लेट्स एंड तेजावत। जैसा कि अपन मशीन, जैसे कि हमने मशीन देखे थे कंप्रेस्ड टैबलेट मशीन, उसी तरह से होती है अपर प्लेट लोअर प्लेट, उसी तरह से ये भी होती है। द लोअर प्लेट आल्सो हैव दो लार्ज के पेग्स होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर एक करेक्ट फिटिंग प्लेट, ऊपर की जो अपर जो प्लेट होती है उसके करेक्ट फिटिंग किया जाती है उसके अंदर। दे आर अवेलेबल इन सेवरल साइजेस हैविंग कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 30 to 250 मिलीग्राम। इसकी जो रेंज है मिलीग्राम मतलब कितना पाउडर उसके अंदर यूज़ करना है, एक पर्टिकुलर टैबलेट का जो होल होता है, जो क्या बोलेंगे उसको, they are available in several size having capacity ranging from 30 to 250 मिलीग्राम, मतलब 30 से 250 मिलीग्राम तक उसकी साइज़ होनी चाहिए। वो जो होल होता है जिसके अंदर हम पाउडर फिल करने आ रहे हैं और उसके बाद कंप्रेस करके जो टैबलेट बाहर आने वाली है, तो उसकी क्वांटिटी जो होती है 30 से 250 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। जनरली 50 to 250 टैबलेट ट्राइचुरेट कैन बी प्रिपेयर्ड एट ए टाइम फ्रॉम टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड। जो कि टैबलेट ट्राइचुरेट की जो मोल्ड होती है उसकी जो ट्राइचुरेट करके जो प्रिपेयर बाहर आने वाले हैं जो टैबलेट ट्राइचुरेट कर तो 250 से 250 टैबलेट ट्राइचुरेट कैन बी प्रिपेयर्ड एट ए टाइम फ्रॉम अ टैबलेट ट्राइचुरेट जो मोल्ड होता है। एक टाइम के अंदर 50 से 250 टैबलेट ट्राइचुरेट कर प्रिपेयर करके बाहर आते हैं उस टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड से और मशीन से। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, the powder with a diluents are mixed together and made a stiff paste with the help of alcohol 60%। जैसा कि हम सेम प्रोसेस है कैसा हमने पाउडर लिया था टैबलेट बनाते हैं, हमने प्रैक्टिकल में देखे थे। तो कैसा पाउडर लेते हैं उसके अंदर एक जो यूज़ करते हैं हम उसके अंदर स्टार्च का पेस्ट बनाते हैं। स्टार्च का पेस्ट बनाने के अंदर थोड़ा सा उस पाउडर के अंदर डाल के उसको थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं मोटर के अंदर। उसी तरह से वहाँ जैसा कि हमने टैबलेट में देखा था, जैसे कि स्टार्च का पेस्ट हम यूज़ करते थे, यहाँ पर क्या करना है आपको, अल्कोहल लेना है, 60% अल्कोहल लेना है। थोड़ा सा जो पाउडर का है, जो पाउडर की जो क्वांटिटी होती है, ड्रग जो होता है उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, स्टिफ पेस्ट बनाने के वास्ते अल्कोहल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और वहाँ पर क्या किया था हमने, स्टार्च पेस्ट यूज़ किया था। इस टैबलेट ट्राइचुरेट में हमको क्या करना है, 60% अल्कोहल यूज़ करना है मेड अ स्टिफ पेस्ट बनाने के लिए। देन पेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अपर प्लेट। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, अपर प्लेट के अंदर क्या करना है हमको, यहाँ पे एक एग्जांपल और एक इमेज बताई गई है। इस इमेज में हमको क्या करना है, जो ऊपर वाली प्लेट है देन द पेस्ट इज इंट्रोड्यूस ऑन अपर प्लेट। अपर प्लेट के अंदर वो जो पेस्ट है इंट्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। स्पैचुला के हेल्प से हमको जो पेस्ट हमने बनाया है पाउडर का, अल्कोहल यूज़ करके पेस्ट जो बनाया है अपर प्लेट में हमको डाल देना है। देन फिल ऑल द होल्स एंड रिमूव एक्सेस। जब जो भी होल है ऊपर के वो पूरे होल्स हमको क्या फिल करने हैं और जो एक्सेस क्वांटिटी जो हमने डाली है उसको रिमूव कर देना है। दिस प्लेट इज प्लेस्ड ओवर द लोअर। अब जो प्लेट हमने भरी है ऊपर की उसको क्या करना है, प्लेस्ड ओवर करना है, ऊपर लगाना है, लोअर प्लेट के ऊपर उसको रख देना है। देन लिटिल प्रेशर इज अप्लाइड ओवर द टॉप प्लेट विच इज फिल फोर्स द प्लेट मूव downward leaving the mold tablet on the projected pegs। उन्होंने क्या बताया कि एक लिटिल प्रेशर इज अप्लाइड ओवर द टॉप, थोड़ा सा एक लिटिल प्रेशर अप्लाई करना है हमको ऊपर के प्लेट के ऊपर, विच विल फोर्स द प्लेट, जिससे कि वो प्लेट फोर्स करेगी मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट में प्लेट फोर्स हो जाएगी नीचे की साइड में। एंड लिविंग द मोल्ड प्लेट, जो मोल्ड है, मोल्ड मतलब जो शेप में टैबलेट और मोल्ड मतलब क्या, जो शेप में हमको टैबलेट चाहिए होती है टैबलेट ट्राइचुरेट, उस शेप में जो मोल्ड है वो जैसे कि हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे वो जो नीचे की जो प्लेट है लिविंग मोल्ड होके लिव हो जाएगी टैबलेट प्रोजेक्टेड पेग्स के अंदर, टैबलेट क्या शेप के अंदर नीचे की प्लेट नीचे आ जाएगी। देन प्रिपेयर द टैबलेट राइट। जो टैबलेट हमको जैसा हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वैसे उसी तरह से नीचे हमको मोल्डेड टैबलेट मतलब टैबलेट के शेप में नीचे टैबलेट आ जाएगी।
और क्या करेंगे उसके बाद जो टैबलेट आ जाएगी, देन प्रिपेयर टैबलेट्स, जो प्रिपेयर किए वाली जो टैबलेट ऊपर से नीचे आएगी, तो उसको ड्राइड इन हॉट एयर, उसको हॉट एयर ओवन के अंदर उसको ड्राई करना है बाय कीपिंग इन अ वार्म प्लेस। उसके बाद उसको कीप इन अ वार्म प्लेस के अंदर रख देना है। ये क्या हो गया, हमारा हमने देख लिया कंप्रेसर पाउडर टैबलेट और टैबलेट ट्राइचुरेट हमने देख लिया, मोल्डर टैबलेट। समझ में आता है क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं इन शॉर्टली कि कंप्रेसर पाउडर सिंपल क्या है, जैसा कि हम बनाते थे टैबलेट उसी तरह से सेम प्रोसेस है, सिर्फ इसका नाम टैबलेट ट्राइचुरेट ऐसा बताया गया है कि वो टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्डेड टैबलेट्स के अंदर इसको कैसा यूज़ करेंगे और कैसा हम कैप्सूल का भी एक ऐसी ही डेफिनेशन थी, ऐसे ही एक इमेज थी, जिससे कि हम क्या करते हैं, जो जिलेटिन का जो थर रहता है वो ऊपर की प्लेट में डालेंगे और नीचे की डालेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे और कैप्सूल बाहर निकालेंगे। उसी तरह से ये पाउडर को डालना है, सॉलिड पाउडर को, और वेट किया गया मास को ऊपर की प्लेट में। टैबलेट ट्राइचुरेट जो मोल्ड है, इसका स्पेशल जो मोल्ड है ऊपर की प्लेट में डालेंगे, सिंपल पाउडर वेट किया गया पाउडर, और उसको नीचे वाले जो शेप है हमारा, जिस शेप में हमको टैबलेट चाहिए होती है, टैबलेट ट्राइचुरेट की जिस शेप में हमको टैबलेट चाहिए होती है उसी तरह से उसके जैसे ही हम ऊपर का जो फिल किया हुआ कंटेंट नीचे वाले पार्ट में रखेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो नीचे से अपने आप डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या हो जाएगा, प्लेट के अंदर वो शेप में हमको टैबलेट मिल जाएगा। यही बताया गया हम पे कंप्रेसर पाउडर ऐसा बोलेंगे टैबलेट का। ओके, समझ में आता है आप सबको क्या हमने आज के लेक्चर में देख लिए थे। आज का ना जो हमने नया एक पॉइंट सीखा था वो था एक क्या था कि बोलेंगे उसको पाउडर इनक्लोज इन कैकेट्स के अंदर पाउडर कैसे इनक्लोज करते हैं वो देख लिया था हमने। उसके एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए, उसके दो टाइप थे वो देख लिए, एक वेट सील कैकेट देख ली थी, ड्राई सील कैकेट्स देख ली थी, देन उसके इमेज देख ली थी, उसकी मशीन कैसे कंप्रेस करेंगे उसको वो देख लिए थे, उसके बाद ड्राई सील देख लिए थे। उसके बाद हमने जो लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन था पाउडर का, कंप्रेसर पाउडर टैबलेट्स, वो हमने देख लिया था कैसे कंप्रेस करते हैं, तो उसकी एक मशीन है वो हमने देख लिए। तो in the last, thank you.